All right, so I hope I am audible and clear. Let's start with today's class. So we were at the class 10th juncture in our timeline with reference to the NCRT, and we have covered a lot of topics up until now, and we have also even covered all the fundamentals that were given in the NCRT regarding magnetism. So, as promised, today is going to be it's going to be a wrap up, and it will be a question answer session which will be dealing with some questions that appeared have been appearing in the IAS prelims, or some questions have been taken from the NDA exam as well, because I felt that the parts that we have studied uh, can be used to make up questions that are related to our everyday life. And let's see how magnetism can be asked to us in IAS prelims. Please unmute yourself. Yeah, sorry. So this is just factual question. We can just remember the answer to this one. It is 1 Gauss. Earth's magnetic field is approximately. Now this Gauss, unit has been taken as a reference for Earth's magnetic field. So this here it is, and in uh, more detailed study of magnetism when it is related to engineering, and even in 10+2 studies or some competitive exams, this unit is also taken into consideration, Tesla unit, but that is just for our information. Earth's magnetic field, yes, we should know because we live in the earth, on the earth, and 1 Gauss is the magnetic field. Going towards the next question. Magnetism of a bar magnet can be destroyed if it is. So this is a multiple choice question, and we can see that there are three options: kept in the magnetic meridian, placed in a direction opposite to that of the Earth's horizontal intensity, heated to a temperature known as Curie temperature. So if a magnet, as we have studied, that a magnet has some some field lines that originate out of it, and we know that they go from north to south. ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखी हैं कि वो मूव करती हैं, और वी अज्यूम्ड दैट ऐसे उनका डायरेक्शन होगा, एंड इनसाइड अ बार मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं. ये होता है कुछ शेप. सो
kept at the magnetic meridian. अब अर्थ का जो अर्थ के अर्थ इज ऑल्सो मैग्नेट एंड इफ वी सी इट एज अ परमानेंट मैग्नेट तो उसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो अर्थ की भी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही निकल निकल के जा रही होती हैं, अंदर से वो इनसाइड द अर्थ टुवर्ड्स द पोल जाती है. मैग्नेटिक मेरिडियन बीच वाला जो एरिया होगा उसमें रखेंगे तो क्या मैग्नेट डिस्ट्रॉय हो सकता है? नहीं, इतनी पावरफुल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से डिस्ट्रॉय करें. बट placed in a direction opposite to that of Earth's horizontal intensity. अब ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, which is sometimes powerful. जैसे हमने देखा कि जो सबसे पहली स्लाइड थी जिसमें लद्दाख में हमने वो रीजन देखा था, मैग्नेटिक हिल थी, तो वहां पे इवन मेटालिक व्हीकल्स जो है attracted towards the magnet towards that hill, and people are suggested to switch off their व्हीकल्स एंड वो अपने आप धीरे धीरे खींची चली जाती है वहां पे. एंड देन देयर इज अ माउंटेन जहां पे रिवर्स पोलैरिटी है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे चीजें मैग्नेट्स लेविटेट भी करते हैं सरफेस के ऊपर. तो ठीक है, जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अ मैग्नेट इज आल्सो द मोस्ट पावरफुल वेयर द इंटेंसिटी इज द मोस्ट, जो कि उसका सेंटर के अराउंड है. तो जब हमने देखा कि इफ इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन तो वो ब्रेक नहीं करेगा मैग्नेट, क्योंकि वो उसके डायरेक्शन में इट विल जस्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट स्ट्रांगली बट इट वोंट ब्रेक. बट अगर हम उसकी पोलैरिटी डिफरेंट कर दें, अर्थ की पोलैरिटी नॉर्थ साउथ है एंड एक मैग्नेट को हम साउथ एंड नॉर्थ रख दें उसके हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, तो इट कैन ब्रेक. एंड हीटेड टू अ टेम्परेचर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. मैग्नेट्स के बनने और हमारे अर्थ पे जो ओरिजिन है मैग्नेटाइट, फेरिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, वो काफी हद तक जुड़ा हुआ है टेम्परेचर से, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक हिल भी है, इट वाज मैग्नेटिक हिल वाज इट केम इनटू एग्जिस्टेंस तब टाइम, ऐसे टाइम पे जब अर्थ वाज फॉर्मिंग एंड उसके मैग्नेटिक पोल्स जो है कंसिस्टेंटली शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि मोल्टन स्टेट में था उस समय अर्थ का सरफेस एंड काफी सारा लावा मैग्मा फ्लो कर रहा था सरफेस पे, तब तक सॉलिडिफाई नहीं हुआ था. तो उस समय प्रॉपर्टीज बनी कुछ सब्सटेंसेस के अंदर जो विच मेड द मैग्नेट्स. तो अगर उसे हम इस क्यूरी टेम्परेचर पे एट अ टेम्परेचर एट विच a magnetic or a magnetite material can be molten, तो वहां पे वो क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय हो सकता है. मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक परमानेंट मैग्नेट की हैं वो खत्म हो जाएंगी. तो क्यूरी टेम्परेचर ऐसे ही बताया भी जाता है. क्यूरी टेम्परेचर इज a temperature, it's a specific temperature named after the scientist who found this, at a certain temperature where magnetic materials undergo a sharp change in their magnetic properties. तो sharp change यही है, either the polarity of the magnets can be reversed, जैसे कि magnetic hill के केस में हुआ, or they can also be destroyed. For this question we have the answer as C, 2 and 3. See about the next question. This is not exactly related to magnetism, but we left out some questions when we were studying electricity. And as I've said, electricity and magnetism go hand in hand. They have properties that affect each other. If there is electricity, then magnetism can be, you know, created, and if there is magnetism, then electricity can be induced in a specific apparatus known as a coil. So let us not keep this out of practice. And IAS prelims में question आया हुआ है, so it is also a fact-based question. We just have to remember this. What is the order of magnitude
of electric resistance of the human body? ये एक अच्छा क्वेश्चन है. हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस है. यू माइट हैव नोटिस कि जब आप कोई बैटरीज को छूते हैं, उसके टर्मिनल्स को आप कनेक्ट भी कर देते हैं, तो भी आपको झटका नहीं लगता है. यू डोंट फील दैट इलेक्ट्रिक शॉक. बट कभी कभी आप जब आपने कभी ओपन वायर छू लिया हो, या फिर जो आपके घर में मेन सप्लाई आती हो, गलती से आपका हाथ कभी कोई प्लग लगाते हुए लग गया हो, तो देन आपको झटका लगता है. तो व्हाई इज दैट? कि वो बैटरी को, टर्मिनल्स को आप शॉर्ट कर रहे हैं तब नहीं लग रहा है, लेकिन कभी आपको लग जा रहा है. सो दैट इज बिकॉज आपके अंदर की जो रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक करंट को झेलने की क्षमता है, वो कितनी है. अगर उससे कम, उतनी रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस पे करंट फ्लो कर रहा है, या यूं कहें कि करंट की इंटेंसिटी इतनी नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो आई हमने देखा था वो इतना नहीं है कि उस रेजिस्टेंस बैरियर को तोड़ पाए, तो योर बॉडी विल रेजिस्ट इट. तो इसका आंसर है 10⁴ ओम्स. ओम वही ये वाला सिंबल जो हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा था, दिस इज ओम. तो 10⁴ मतलब ये 10⁴, हमने साइंटिफिक नोटेशंस भी ये देखे थे कि 10 के ऊपर जितना एक्सपोनेंट पे पावर लिखा है उतने जीरोस होंगे उस पे. तो दिस इज 10⁻, इतनी ओम्स रेजिस्टेंस है आपके बॉडी की. Moving on to the next question. Fluorescent tubes are fitted with a choke. अच्छा, पुरानी ट्यूबलाइट्स, इतनी भी पुरानी नहीं, 2010 से पहले की लगभग जितनी ट्यूब रॉड्स आती थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्यूब रॉड है, 1 सेकेंड, ट्यूब रॉड्स होती थी ऐसे फ्लो करती हुई, उनका जो पीछे का ब्रैकेट होता है जिसपे वो लगती थी ट्यूब रॉड्स, उन पे यहाँ पे या किसी एक साइड पे एक चोक रहता था. और वो ट्यूब रॉड्स एक बार में नहीं जलती थी, वो फ्लिकर करती थी. जब आपने उनका स्विच ऑन किया हो तो वो जलती बुझती थी, बट एकदम से फिर एक थोड़े मतलब फ्लक्चुएशंस के बाद फिर एकदम से वो जल जाती थी. और यहाँ पे भी आप लोगों ने कुछ लाइटनिंग जैसी देखी होगी, या कुछ फ्लक्चुएशंस देखे होंगे बड़े. ये चोक क्या करता है, वो स्टोर करता है ढेर सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से उसमें आ रही है, एंड देन वो एक बर्स्ट के फॉर्म में इस ट्यूब रॉड के अंदर एक प्लाज्मा होता है. ये थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. ट्यूब रॉड के अंदर कुछ गैसेस फिल्ड होती हैं, एंड उन गैसेस को जब एक सर्टेन टेम्परेचर मिलता है, तब दे गेट कन्वर्टेड टू प्लाज्मा स्टेट. जैसे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, जो शुरुआती क्लासेस में हमें अप अंटिल आवर क्लास 10th हमें सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताए जाते हैं, नेमली solids, liquids and gases. ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं अपने डेली ऑब्जर्वेशंस में. सो सॉलिड्स ठोस चीजें, लिक्विड्स सारे तरल पदार्थ, पानी हो गया, दूध हो गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ केमिकल्स. एंड गैसेस, द एयर वी ब्रीथ, all sorts of gases that we have come to know in our surroundings. But दो और states होते हैं. One is plasma and one is boson Einstein condensate. अब ये स्पेशल केसेस है उन्हीं सॉलिड्स लिक्विड गैसेस का ही. आप बेसिकली फ्लूइड्स गैसेस के ही ये थोड़े एक वो है स्पेशल कंडीशन के स्टेट्स हैं, जब बहुत हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, तो प्लाज्मा की जनरली बात हो रही होती है. फ्री आयंस गैसेस जो है, फ्री आयंस में जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो प्लाज्मा स्टेट हो जाता है. एंड इफ वी कूल थिंग्स डाउन टू द वेरी बॉटम ऑफ द टेम्परेचर स्केल, 0 केल्विन के अराउंड अगर
0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट मिनिमम, इससे नीचे नहीं जा सकता टेम्परेचर। बट अगर एब्सोल्यूट 0 के पास पहुंच रहे होते टेम्परेचर, तब वो कुछ ऐसा रिसर्च में नाम आया था चीजों का। तो प्लाज्मा होता है ट्यूब्स के अंदर, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर, एंड उसके गर्म होने पे ही सर्टेन बहुत ही मतलब डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है ये ट्यूब रॉड। तो चोक कॉइल क्या करती है, इट रिड्यूसेस द करंट इन द सर्किट, ये है इसका आंसर। बट इसको समझने के तरीके पे आते हैं। ये हाई वोल्टेज पे काम करती हैं चीजें, ठीक है। तो इसमें एक यहाँ पे मशीनरी भी होती है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। बट दिस चोक, दिस मेक श्योर कि जो एक्सेसिव करंट इस अपराटस के थ्रू बन रहा है उसको वो थोड़ा रिड्यूस करके रखे, कम करे, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट सिचुएशन, एक डेलिकेट क्या कहते हैं पॉइंट पे ही वो प्लाज्मा स्टेट रीच होता है जब वो ग्लो करना शुरू करता है। उसे मेंटेन करने का ये एक काम करता है। एंड आज की जो ट्यूब रॉड्स आ गई हैं हमारे यहाँ, वो फ्लोरेसेंट नहीं रह गई हैं, वो एलईडी ट्यूब रॉड्स है। उनमें ये गैस वाला सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। उसमें एक पीछे स्ट्रिप लगी होती है, ढेर सारी उसमें एलईडीज होती हैं, और उस एलईडी स्ट्रिप के ऊपर एक हॉलो ऐसे एक ट्रांसलूसेंट फिल्म चढ़ी होती है, ट्यूब रॉड के जैसे दिखने वाली। और बस वो डिफ्यूज करती है लाइट को। एलईडी लाइट ऐसे क्योंकि स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो वो पूरे पूरे एरिया को इल्यूमिनेट नहीं करेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन लेयर वो पूरे एरिया को इल्यूमिनेट कर पाती है। सो दिस इज द आंसर टू इट, reduces the current in the circuit. Okay, then moving on to the next question. ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर दिस, बट इट डायरेक्टली एसोसिएटेड है अगेन विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आवर अर्थ, तो इसको हम कंसिडरेशन में लेंगे फिर से। कभी कभार अगर हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो हम एलिमिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जैक्टली आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं अपनी मेमोरी से कि इसका आंसर क्या था, इफ यू हैव सीन दिस क्वेश्चन बिफोर, तो यू कैन यूज अ कॉमन सेंस एंड एलिमिनेट द मोस्ट अनकॉमन आंसर्स। Electrically charged particles from space traveling at speed of several hundred kilometers per second can severely damage or harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching the surface of the earth? अब हाँ, मुझे याद आ रहा है, उस टाइम हमने इसको दो तरीके से देखा था। इफ वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हमने इन दो ऑप्शंस को करेक्ट माना था, क्योंकि और इन दोनों की सर्टेनिटी मतलब डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसको फर्स्ट नंबर दिया था हमने। इफ इट्स अ सिंगल चॉइस देन दिस विल बी द आंसर, इफ इट इज अ मल्टीपल चॉइस देन दीज बोथ कैन बी द आंसर्स। ओजोन लेयर डिब्री और पार्टिकल्स को नहीं हटा रहा है, बट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर विच कम फ्रॉम द सन इन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन, जैसे न्यूट्रिनोज, फोटॉन्स, जो बहुत हाई स्पीड फोटॉन्स आ रहे हैं, वो भी हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ओजोन लेयर एक्चुअली हेल्प्स इन स्टॉपिंग दोज पार्टिकल्स। बट जो सॉलिड मास, सॉलिड डिब्री जो पूरे स्पेस में ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, वो जो जिसमें कुछ मेटालिक कंपोनेंट्स भी होंगे, उनको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट करती है। जैसे हमने देखा कि वो जो कॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था, कॉइल वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अगर ये कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर से, अब हमने नया मीटर यूज करना शुरू कर दिया, गैल्वेनोमीटर, तो हमने देखा कि अगर कोई मैग्नेट is moving towards or moving away from a coil, then उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आता है। तो एक स्टेशनरी कॉइल में, या फिर अगर कॉइल मैग्नेट दोनों मूव कर रहे हैं, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट, देन उसमें कुछ करंट जनरेट हो जाता है। इसके डायरेक्शन के बारे में हमने उस दिन देखा ही था, इट्स नॉट गेटिंग डिटेल्स। तो ऐसे ही कुछ
यहाँ पे भी होता है, अगर डिब्री जो है वो फॉलो कर रही है अर्थ के पास, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं दे विल इंड्यूस सम सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन, और एक फोर्स लगाएगी, जो हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से सीखा था। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कुछ याद हो तो आपने सीखा था कि फ्लेमिंग्स राइट एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट, सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने देखा था कि अगर हमें दो डायरेक्शंस पता है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, तो वी कैन फाइंड द थर्ड डायरेक्शन। फील्ड का डायरेक्शन किधर है एंड करंट का डायरेक्शन किधर है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि फोर्स किधर लग रही है बॉडी पे। तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि डिब्री में करंट कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ उसमें चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कुछ करंट फॉर्मेशन कर दे उसके अंदर, सो इट विल बी मैग्नेटिकली अफेक्टेड। एंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वही डिफ्लेक्ट करेगी उसे। डिफ्लेक्ट कैसे करेगी? ऐसा नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स है अर्थ की, ऐसा नहीं है कि एकदम ही कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो उसको यूं ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगी, नहीं, वो शील्ड करेगी उसको, डेविएट कर देगी उसके पाथ को, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लग जाएगा उसके डायरेक्शन में। जिधर से पार्टिकल आ रहा है, कोई पार्टिकल ए अगर यहाँ से आ रहा है, तो उसको एक ये इस फील्ड के अंदर आते ही कुछ एक डायरेक्शन मिलेगा जिसकी वजह से वो शायद ऐसे करके निकल जाए, या फिर नीचे आ रहा है तो ऐसे करके निकल जाए, या फिर क्योंकि ये 3 डायमेंशनल सर्फेस है हमारी अर्थ, तो इसलिए हो सकता है कि वो आके और कर्व होके ऊपर से भी चली जाए। दिस इज हाउ अर्थ प्रोटेक्ट्स the magnetic field of earth protects the earth from the debris falling towards it from space. Sorry, तो आंसर एक बार मार्क कर देते हैं। If it's a single choice question, then this is the answer, and if it's a multiple choice question, these both can be the answers. So now this is a question which asks us to match the lists, and यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स दिखाई दे रहे हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट एक तरह का मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, अर्थ एज अ मैग्नेट। तो इसे हमें इक्वेट करना है इनकी लॉन्जेविटी से, कि कौन कितना ज्यादा लॉन्ग टाइम तक एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकता है। लेट अस सी। सो फ्रॉम आवर इन्फ्लुएंसेस वी कैन सी, जो अभी तक हमने पढ़ा है, कि परमानेंट मैग्नेट्स को काफी हमने स्टडी किया। परमानेंट मैग्नेट्स जिसको हमने एक बार मैग्नेट की शेप में देखा, या फिर एक ओम शेप का जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है उसकी शेप में देखा। नॉर्थ साउथ सबके पोल्स होते हैं कुछ कुछ। तो दीज आर दी मैग्नेट्स विच लिव एज द लॉन्ग, मतलब दे आर लॉन्ग लिव्ड मैग्नेट्स, क्योंकि ये वही क्यूरी टेम्परेचर वाले सिस्टम से बनाए जाते हैं। मैग्नेटिक मिनरल्स को, मैग्नेटाइट मिनरल को जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करके उन बार मैग्नेट्स की शेप दी जाती है, और उनके पोल्स को डिफाइन किया जाता है, तो एक बार सॉलिडिफाई होने के बाद बहुत समय तक वो वैसे ही बने रहते हैं, जब तक कि उनका कोरोजन ना हो। इफ देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरोजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाए उसका, बहुत सारा हार्मफुल या कवरिंग मटेरियल उसके अराउंड आ जाए, देन दैट कैन affect the longevity of that magnet. So we can say that the permanent magnets are long lived. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मेरे ख्याल से उनके नाम में ही लिखा है कि दे विल बी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि दे आर आर्टिफिशियली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या हो जाएगा, what can be an artificial magnet? जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे बताई जाए? एक, जब आपने किसी बलून को अगर
लेट्स से हाँ किसी प्लास्टिक मटेरियल को, किसी ऐसे मटेरियल को जो चार्जेस एक्यूमुलेट करता है, एक बलून सिंपल सा, उसको जब हम रब करते हैं तो उसमें कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चिपक जाती है या कुछ आयंस हमारी बॉडी से फ्लो करके उस पर चले जाते हैं, देन इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ मैग्नेट, एन अनकन्वेंशनल मैग्नेट। वो अट्रैक्ट करने लगता है और चार्ज पार्टिकल्स को, नॉट एग्जैक्टली मैग्नेटिक मटेरियल्स, बट छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करने लगता है, बिट्स ऑफ पेपर या छोटे और प्लास्टिक्स या बहुत हल्के नेल्स को भी वो कर सकता है। सो दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि वो फ्री आयंस वापस अपने नेचुरल स्टेट में चले जाते हैं और वापस मूव करके पीछे आ जाते हैं। तो दिस इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, इट इज शॉर्ट लिव्ड। टेम्पररी मैग्नेट, ये हमने पढ़ा है। टेम्पररी मैग्नेट इज एन इंड्यूस मैग्नेट। ये तो मतलब एकदम ही शॉर्ट लिव्ड भी नहीं कहेंगे इसको, तो कहेंगे इंस्टेंटेनियस है। जो ये कॉइल हमने देखी थी, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल से, कोर इसका जो कोर है वो अगर आयरन का है या किसी और मैग्नेटिक मटेरियल का है, एंड इफ वी पास सम करंट साइड दिस, तो दिस विल टर्न इनटू अ मैग्नेट, सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ये। एंड दिस इज एन इंड्यूस्ड मैग्नेट। इसकी लॉन्जेविटी कुछ नहीं होती, जब तक करंट पास हो रहा है इसमें तब तक होगा। इट हैज नो magnetic storage of its own. So this will be an induced magnet, and Earth as a magnet. Why this can be related to this, last for infinitely long period. अब भाई नेचर से बड़ी कोई पार है नहीं हमारे समझ से, एंड द यूनिवर्स हैज so many wonders, so many different kinds of you know astronomical level beauties. Earth is one of them, and Earth as a magnet is definitely the longest in all of the magnet types that we have studied right now. So, in my opinion, the answer would be the first. So, artificial magnet is short lived, permanent magnets are long lived, temporary magnets are induced magnets, and Earth as a magnet is definitely the infinitely long period, lasting for infinitely long period. This is a question which says, what is the number of neutral points for a bar magnet with its north pole pointing geographically north? अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बट आई थिंक दिस विल कम इन हैंडी एज अ गुड इंफॉर्मेशन, फूड फॉर थॉट इंफॉर्मेशन। आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे कि व्हाट इज geographical north, and what is the actual north. अब सर ने क्योंकि हम लोग को ये पढ़ा दिया है, तो और ज्यादा मतलब ज्योग्राफी वाले में हम पढ़ रहे हैं क्लासेस में, बट इसको एग्जैक्टली exactly आप लोग जरूर ढूंढेंगे कि क्यों होता है। इसका कुछ आंसर है अर्थ की टिल्टेड एक्सिस से रिलेटेड। तो टिल्टेड एक्सिस है अर्थ की, तो उससे रिलेटेड कुछ है, अगर आप लोग क्यूरियस होंगे तो जरूर इसको। यप, ओके। What is the number of neutral points for a bar magnet with its north pole pointing to?
ओके सो अगर देख लिया आपने तो वेल एंड गुड, एंड नहीं तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ये भी एक फैक्चुअल चीज है, अगर आप याद कर लेंगे तो इट्स वेरी गुड, बट मैं डायग्राम से जरूर आपको देख के बताऊंगा। सो हम वापस आते हैं अपने बार मैग्नेट पे, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रिजल्टिंग टू बार रिलेटेड टू बार मैग्नेट। ये रही हमारे नॉर्थ साउथ पोल्स, एंड जैसे कि हम बनाते आए हैं अपने फील्ड लाइंस को हम बना देते हैं। रूल ऑफ थंब यही है कि हम याद रखेंगे कि वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं एंड वो इंटरनली साउथ से नॉर्थ आ जाती है टू कम मेक अ कंप्लीट सर्कल। एंड ये कंडीशन तब अराइज होती है, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में इट्स इज एन आंसर इटसेल्फ, कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, then the term called neutral points arises। and वो neutral points कहाँ बनते हैं ये देखना है। if it's laid and flat, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे उसका डायरेक्शन मान लेते हैं हम, दिस इज द नॉर्थ ऑफ द अर्थ, दिस इज द साउथ, so this will be the geographic north and this or the magnetic south। and this is the geographic south or magnetic north। so if it is aligned with this, okay, बाहर मैग्नेट का, देन लेट्स सी बाहर की फील्ड्स कैसे बनती हैं, और जितना हम इससे बाहर जाते जाएंगे फील्ड्स और डाइवर्ज करती जाएंगी, तो दिस दे विल फॉर्म सम पोर्शन लाइक दिस, ऐसे फील्ड कुछ बनेंगे। सो ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे विच विल बी इक्विडिस्टेंट, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ऐसे दो पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, जब एकदम अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ है मैग्नेट, तो ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, which are equidistant from the geographical north and south of the earth and the magnets। ये दो पॉइंट्स न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे जहां की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बिकॉज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इक्वल होगी, और टू एज कंपेयर टू द मैग्नेट्स फील्ड एट दिस पॉइंट, तो वो दोनों ही अलग डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। जैसे यश सर की क्लास में अपने फ्री बॉडी डायग्राम पे पढ़ा था कि अगर रिजल्टेंट फोर्स कुछ न्यूटन्स की फोर्स लग रही है एक डायरेक्शन में, कुछ न्यूटन की फोर्स लग रही है एक डायरेक्शन में, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती है तो दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। वैसे ये दो पॉइंट्स जो है इन पे इक्वल फोर्स लग रही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक साउथ है, geographical north is a magnetic south and the geographical south is magnetic north। जब सेम डायरेक्शन में दो मैग्नेट्स रखे रहते हैं, वी हैव सीन कि ये रिपल्शन वाली फोर्स लगती है, अट्रैक्शन वाली फोर्स लगती है जब ऑपोजिट ऑपोजिट पोल्स होते हैं। सो ये दो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे कंसिडर्ड कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एक एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट या एनी सॉर्ट ऑफ मैग्नेट की फील्ड इक्वली पावरफुल हो जाए, तो वहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स बनते हैं। So by the law of symmetry, we can see that the answer should be 2. Okay, moving forward. सब ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने आई मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डेज में पढ़ा था। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी important for us, it's also not in the IS prelims, but ये NDA के एग्जाम में है, it is a little more drawn towards science than other exams।
तो बहुत तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। जब मैग्नेटिज्म को लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, क्या होता है, और उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज अगर और आप यू नो सब एटॉमिक लेवल्स पे जाके देखते हैं कि हाउ डज अ मैग्नेट बिहेव, वो चार्जेस का क्या, व्हाट एक्चुअली डज गिव राइज टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन अ सब्सटेंस, तो वो आपको बहुत तरीके के सब्सटेंसेस पता चलेंगे कि कौन से पैरा, जैसे इधर तो समझ में नॉन मैग्नेटिक मतलब विच डू नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय मैग्नेट्स, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये दो मतलब तीन टाइप के सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एंड इन आवर केस वी शुड जस्ट रिमेम्बर कि मैग्नेट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं सब्सटेंसेस को, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, these are some types of names of some minerals जो get attracted by magnets. Then magnets जैसे उनकी प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी नॉर्थ साउथ वाली, अगर सेम पोल्स हैं तो ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वैसे ही इनमें से एक सब्सटेंस है ऐसा डायमैग्नेटिक विच कैन बिहेव इन बोथ वेज। ये भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं एंड दे कैन चेंज देयर magnetic behavior upon under certain conditions. तो magnets can also repel them because वो एक opposite या एक similar pole वाले magnet की तरह behave करने लगेगा एक magnet के सामने. So diamagnetic substances get repelled by magnets. ये याद रख लेना बस at the back of your mind if it ever comes. Here we see another question coming from our electricity topic. Which among the following is the correct order of power consumption for light of equal intensity? Question कह रहा है कि which of the following is the correct order of power consumption of light और equal intensity? मतलब हमें एक कॉमन फैक्टर दे दिया है इक्वल इंटेंसिटी, मतलब सेम तरह का इफेक्ट ऑफ लाइट हमें देखने मिलेगा, सेम मतलब बराबर का ल्यूमिनेसेंस, बराबर की रोशनी हमें देते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस। तो इनमें से पावर कंजम्पशन किसका ज्यादा होगा किसका कम, वी जस्ट हैव टू कीप देम इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड इन आवर केस सबसे ज्यादा जो पावर एफिशिएंट डिवाइसेस आजकल, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है, आर एलईडीज। एलईडीज क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि उनको एडवर्टाइज भी ऐसे ही किया जा रहा है कि बहुत लो कॉस्ट में आपको वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। एक 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 9 वॉट का एलईडी बल्ब इज समवॉट इक्विवेलेंट टू अ 14 और मे बी 15 वॉट का सीएफएल बल्ब, वाइस वर्सा। तो if we keep the luminosity equal, then light emitting diodes should always come at the very beginning of this curve. Then CFL tube, CFL was the next best invention which came before LEDs, काफी ज्यादा power बचाने वाला। And then fluorescent tubes एकदम ही CFL जैसे काम करती हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी होती हैं इसलिए they will consume more electricity. Incandescent bulb वही हमारा टंगस्टन बल्ब जो होता है, ये वाला, तो शुरुआती क्लास में पढ़ा था, ये वाला बल्ब जो होता है ये होता है टंगस्टन। ये तो हम जानते ही हैं, they were very cheap but they consumed a lot of electricity. जो इलेक्ट्रिसिटी की हमारे यहाँ यूनिट की डेफिनेशन बनी थी वो इसी से बनी थी कि एक 100 वॉट का जो बल्ब है अगर वो 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम। तो सबसे ज्यादा तो भाई यही लेने वाला है, इनकैंडेसेंट बल्ब। दो में ये आंसर है। एंड वी हैव आल्सो कम टू कंक्लूजन कि लाइट एमिटिंग डायोड सबसे पीछे होना चाहिए, तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर।
for this question, the answer is B. Then we come to another question related to magnets, and this says which of the statements given below is not correct? A vertical plane passing through the axis of a freely suspended magnet is called magnetic median. Vertical plane passing through the axis of rotation of the Earth is called geographical meridian. The degree to which magnetic field can penetrate a medium is known as relative permeability of the medium. Relative permeability is not a dimensionless quantity. I think we will skip this question. ये question हमारे स्टैंड पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये. इफ Shaurya sir takes this up in geography class, then well and good. I'll just quickly throw this question once again in our next classes. अब next class में तो हम नया टॉपिक, नया चैप्टर और नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं. Although a part of physics, but we'll be expanding our knowledge of physics even more. But just for the sake of answering this question, the answer is relative permeability is not a dimensionless quantity. अब ये काफी ज्यादा specific terms हो गए. Permeability क्या है, and that too relative, and dimensionless quantities क्या है क्या नहीं है. We'll just skip it. We don't have to study everything in it. So that being said, today's question answer series is done. I hope we went through a big umbrella of questions, and yes, that is about it. Thank you so much.